students, myself Rubina Chaudhary, and today I am going to start a new chapter of class 10, and that is known as a life process in living organism part 2. So student, what do you mean by process? Let us try to understand firstly what does a word process means. So there are various processes which are carried out by our body, such as respiration, digestion and many other processes like sensation, or there are some movements which our body does, and that process all are necessary for our survival. If we don't perform that processes, we won't be able to exist. But in this chapter, when we are talking about life process in living organism part 2, let us see student what we are going to see in this chapter. Student, in this chapter there is a very important process which is known as a reproduction. But when we are talking about reproduction, it is not an essential process for our survival. We can survive even without reproducing. Like we cannot survive if we don't eat food, if we don't drink, and there are many processes which are necessary for survival. But reproduction is basically a process where we have to reproduce to maintain our existence. The whole process, the whole chapter of class 10 life process in living organism part 2 is based on reproduction. We are going to see reproduction in unicellular organisms, reproduction in multicellular organism, reproduction in plants and reproduction in animals. So student, first of all we need to understand a word reproduction. Firstly, I am telling you the whole chapter will be based on reproduction. We will be talking about reproduction only throughout the chapter, and there are various new technologies which are used. We will discuss them one by one. So when I am talking about reproduction, what does a word reproduction mean? Let us firstly try to understand. We have a word reproduce. If you split reproduction into two parts, we can write down it as a re and another one as a production. Re means something that appear again, and production means to produce. So in short, I can write down it as a produce again in a simple term. But have you ever noticed that there are almost every species who does reproduction, but when we look at a dog reproduce his similar one like a puppy, whereas when we see elephants give birth to baby elephants and so on. Like a plant give reproduction to a plant which is similar to him. So why does it happen? Why every living organism give reproduction to their similar one? Let us see that as well. So firstly student, we are going to see a definition of a reproduction. Anything that is produced again and again is known as a reproduction. So what happened? There are some species which are already present, and now after a year or like 10, 20, 50 years, they will be ending up their life. So before ending up their life, what they does is they produce similar to themselves, but which are younger to them. They are not exactly of same size. They produce a smaller individual of same species, but they are younger to them. For an example students, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा species जो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करे लेकिन उससे छोटा हो. एग्जिस्टिंग स्पीशीज अपने जैसा रिप्रोडक्शन करेगी, अपने जैसा प्रोड्यूस करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. लेट अस राइट डाउन अ डेफिनेशन ऑफ अ रिप्रोडक्शन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, formation of a new species from existing species which is similar
to them is called as reproduction. Formation of a new species which is similar to them is known as a reproduction, but again it is younger one. So student, हमारे पास ये definition आ गया reproduction का. अब ये जो chapter reproduction है, यहाँ पे हम various type of reproduction के बारे में बात करेंगे. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कितने टाइप के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बाय द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अगर हम रिप्रोडक्शन का ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो हमारा रिप्रोडक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है. पहले रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं असेक्सुअल reproduction. Firstly we will call it as a asexual reproduction. और दूसरा जो हमारे पास रिप्रोडक्शन का मेथड है उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आगे जाके फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट्स डिवाइडेड अगेन इन टू पार्ट. एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर स्टैंडिंग फॉर रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे चैप्टर का कंटेंट होने वाला है. और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, वो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. और फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जिसके बॉडी में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. वो किस तरह से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट वी विल सी. फर्दर स्टूडेंट, जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये चैप्टर में आगे जाके फिर से डिवाइड होता है. असेक्सुअल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करने के अलग अलग तरीके हैं. तो सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज नोन एज अ बाइनरी फिजन. फर्स्टली इट कम्स एज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के बाद जो दूसरा टाइप है इट इज़ नोन एज अ मल्टीपल फिजन. और मल्टीपल फिजन के बाद हम जो लास्ट मेथड देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, दैट इज़ नोन एज अ बर्डिंग. अब बर्डिंग जो है स्टूडेंट्स, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है. तो जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बर्डिंग के बारे में बात करेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल होगा इट विल बी अ एग्जाम्पल ऑफ अ ईस्ट. ईस्ट का एग्जाम्पल दिया जाएगा. और नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास असेक्सुअल इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे मेथड्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन. आफ्टर फ्रेगमेंटेशन स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी रीजनरेशन. रीजनरेशन के बाद हम फिर से देखेंगे बर्डिंग. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग होता है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय हाइड्रा. इट इज़ परफॉर्म्ड बाय हाइड्रा. और हाइड्रा के बाद हम देखने वाले हैं किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं. और लास्ट में जो हमारा टाइप होगा दैट इज़ नोन एज अ स्पोर फॉर्मेशन.
स्टूडेंट्स ये जितने भी टाइप्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये पूरा हमारे चैप्टर का कंटेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे बाइनरी फिजन को डिटेल में पढ़ना है, आपको मल्टीपल फिजन को पढ़ना है, आपको बर्डिंग के बारे में जानना है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। दिस इज अ होल पार्ट विच वी हैव टू स्टडी अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब स्टूडेंट्स हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बात करेंगे तो वी हैव टू सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चैप्टर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका दो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एक क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में होगा, और दूसरा जो दिया हुआ है दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा। स्टूडेंट, तो ये तुम्हारे जो चैप्टर का है सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, और ये कंटेंट हमें पूरे के पूरे चैप्टर में देखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स कि हम समझें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट डिफरेंस इज देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट, आप पहले नोट डाउन कर लो कि ये हमारे पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट होगा। हम बिल्कुल इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन देखेंगे, मल्टीपल फिजन देखेंगे, बर्डिंग देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। ओके स्टूडेंट्स, now we are going to see a distinguish between asexual reproduction and sexual reproduction. So please note down if you want to note down anything. Okay students, now let us see. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अब हमें स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश देखना है। तो लेट अस राइट डाउन, एक तरफ हम लिखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और दूसरी तरफ हम लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और ये समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस राइट डाउन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी कोई भी स्पीशीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है दूसरे सिंगल ऑर्गेनिज्म को या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक सिंगल गैमेट क्या करता है, एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, उसमें भी एक का मेल होना ज़रूरी है और दूसरे का फीमेल होना ज़रूरी है। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस ऑफ अ रिप्रोडक्शन, तो वहाँ से हमें जो है ऑफस्प्रिंग मिलता है। एंड दिस इज नोन एज अ बेसिक डिफरेंस जो है ये सेक्सुअल और असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बीच में है। असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चों यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन इन asexual reproduction, in asexual reproduction there is involvement of single parent। दो पेरेंट
पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. एक सिंगल पेरेंट है और वो बिल्कुल अपने जैसे ही दूसरे ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगी. इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट मीन्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. उसमें भी स्टूडेंट वन शुड बी मेल पेरेंट एंड अनदर शुड बी फीमेल पेरेंट. ये कंपल्जन है स्टूडेंट. अगर दो मेल पेरेंट मिलके चाहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. साइमल्टेनियसली अगर दो फीमेल पेरेंट्स साथ में रिप्रोड्यूस करना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत है और उसमें एक मेल पेरेंट होना चाहिए और एक फीमेल पेरेंट होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट, एक हमने जो पहला डिफरेंस देखा है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें जो बच्चा पैदा होता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट था और उसने रिप्रोड्यूस किया, तो रिप्रोड्यूस करके उसने अपना एक बच्चा पैदा किया या अपने एक न्यू स्पीशीज़ को बर्थ दिया. तो वो जब उसके अंदर ये जो पैदा हुआ है या जो प्रोडक्शन हुआ है न्यू स्पीशीज़ का, वो बिल्कुल सिमिलर होता है किससे? अपने पेरेंट्स से. तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन organism which is produced is similar to their parents. That means they are completely identical to their parents. Whereas students, जब sexual reproduction होता है तो एक मेल पेरेंट आ गया हमारे पास, फिर दूसरा फीमेल पेरेंट है, ये दोनों ने मिलके एक ऑफस्प्रिंग पैदा किया और वो ऑफस्प्रिंग जो है तो इसकी जो क्वालिटीज़ होती है या मतलब ये जो दिखने में होता है, ना तो वो पूरी तरह से अपने फीमेल पेरेंट की तरह होता है और ना ही वो पूरी तरह से अपने मेल पेरेंट के होता है. और इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है या जो न्यू स्पीशीज़ ने बर्थ लिया है, वो स्पीशीज़ अपने पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होता है. the new species which is produced in sexual reproduction are not identical to their parents. ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं. नाउ स्टूडेंट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत रैपिडली अकर करता है, मतलब इट टेक्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस. वेरेज जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ह्यूमंस में, इट टेक 9 months टू रिप्रोड्यूस, वेरेज एन एलिफेंट टेक 2 years टू रिप्रोड्यूस. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. वेरेज अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट अकर्स रैपिडली. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट अकर्स रैपिडली, ये बहुत जल्दी हो जाता है या इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस. वेरेज जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. ये एक तरह का स्लो प्रोसेस होता है. इसको होने के लिए सम टाइम इट टेक्स अ मंथ एंड सम टाइम इट टेक्स अ ईयर और सम टाइम इट टेक्स मोर देन अ ईयर. आफ्टर दैट स्टूडेंट, नाउ देयर इज़
ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये स्लो टाइम में होता है, बट देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लेट अस सी व्हाट आर दोज एडवांटेजेस। स्टूडेंट, आज जो तुम पूरे अर्थ पे तरह तरह के मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ फेसेस देख रहे हो, अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स हैं, सब एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, किसी की हाइट अलग है, किसी का फेस अलग है, किसी के बाल अलग है, किसी का कलर अलग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन दिखने मिलता है। पेरेंट्स की तरह उनका बच्चा नहीं है, अब इस बच्चे के भी बच्चे इनकी तरह नहीं होंगे, तो अलग अलग वैरायटीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहीं पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सब एक जैसे आपको नज़र आएंगे, एवरीवन विल बी सिमिलर। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट इज नो वेरिएशन इज सीन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, वेरिएशन इज सीन। वेरिएशन इज सीन का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें जो बच्चे मिलेंगे वो पेरेंट्स से अलग होंगे और इसी तरह से हमें वैरायटीज़ ऑफ फेसेस या वैरायटीज़ ऑफ कलर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू स्पीशीज जो आता है उसे हम बोलते हैं क्लोन। वी कॉल इट एज अ क्लोन एंड वी ऑल नो द वर्ड क्लोन स्टैंड्स फॉर कॉपी। इसको क्या बोलते हैं? कॉपी बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन बोलने का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? तो रीज़न हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, बिकॉज ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल होते हैं किनसे? अपने पेरेंट्स से, और कम्प्लीटली आइडेंटिकल होने की वजह से वी कॉल इट एज अ क्लोन। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, वी कैन नॉट कॉल देम क्लोन बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर और दे आर नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ ऑफस्प्रिंग। हम यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उनको स्टूडेंट हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टिंग्विश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। बेटा अब अगर हम वन बाय वन देख ले असेक्सुअल और सेक्सुअल का पॉइंट, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म या जो न्यू स्पीशीज़ का बर्थ होगा वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल है किससे? अपने पेरेंट्स से। इसे क्लोन बोला जाता है। वी कॉल दैम एज अ क्लोन। दिस प्रोसेस इज़ वेरी रैपिड, बहुत ही स्मॉल टाइम में ये पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और फिफ्थ पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। इसी का बिल्कुल अपोजिट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। अब वो दो पेरेंट्स में भी वन इज़ मेल एंड अनदर वन इज़ फीमेल। सेकेंड पॉइंट इज़ न्यू स्पीशीज़ जो प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल, कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स से। समटाइम दे आर मोर आइडेंटिकल और समटाइम दे आर लेस आइडेंटिकल, बट कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, अगेन वेरिएशन इज सीन। और लास्ट पॉइंट, जो भी और स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश देख लिया। अब डिस्टिंग्विश देखने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक, देयर इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट। अब हमने क्या करना है? हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स को वन बाय वन जो है स्टूडेंट्स डिस्कस करना है। व्हाट इज बाइनरी फिजन में कैसे होता है, मल्टीपल फिजन कैसे होता है, दैट वी विल सी राइट नाउ स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज asexual reproduction in unicellular organisms।
अब इसके अंदर हमने 3 टाइप्स देखे थे. फर्स्ट वन वॉज बाइनरी फ्यूजन, सेकेंड वॉज मल्टीपल फ्यूजन एंड लास्ट जो है स्टूडेंट वो है बडिंग. तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स विथ सिंगल सेल, जिनके पास एक ही सेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इट इज़ नोन एज अ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट डज अ वर्ड फिजन मीन्स और बाइनरी फिजन ऑल टुगेदर क्या होता है. तो जब आप देखोगे फ्यूजन का मतलब होता है, टू फ्यूज़ का मतलब क्या हो जाता है? मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं और उस छोटी छोटी चीज़ों को जॉइंट करके अगर मैं कुछ बड़ा बना देती हूँ, तो दिस इज़ नोन एज अ फ्यूजन. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? फ्यूजन बोलते हैं. ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर मेरे पास कोई बड़ी सी चीज़ है, कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है और वो ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं. इन शॉर्ट जो फिजन है इसका मतलब है टू डिवाइड. टू डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस. To divide into small piece is known as a fission. So student, what does a binary fission means? We all know binary is a word which is used for two. तो बाइनरी फिजन में क्या होता है बच्चा? बाइनरी फिजन में तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिज्म है. ओके, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? खुद को डिवाइड कर लेगा. बाइनरी मीन्स टू. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी इट मीन्स टू. ये ऑर्गेनिज्म, ये और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड कर लेगा दो नए ऑर्गेनिजम्स में, और इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बाइनरी फिजन. तो लेट अस राइट डाउन अ डेफिनेशन और लेट अस राइट डाउन व्हाट इज अ बाइनरी फिजन. अभी आपको नाम से पता चल गया है फिजन का मतलब होता है डिवाइड करना, और बाइनरी जो है दैट मीन्स टू. तो अब हम लिखेंगे when one organism divide itself into two organisms. When one organism divide itself into two organism, or when one organism divide and produce two new organism is known as a binary fission. ये जो पूरा प्रोसेस होता है into two organism, this process is known as binary fission, और इसी प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म था, वो बड़ा सा ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा किसमें? दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में. अब ये दोनों जो हैं अलग से जाके ग्रो करने लगेंगे और इसी को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस टू अंडरस्टैंड बाइनरी फिजन इज अमीबा. अब क्या होता है स्टूडेंट? अमीबा को अगर हम देखें, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक डिफॉर्म बॉडी है, जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, और उसके बॉडी के बीच में है न्यूक्लियस. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस मार्क इट डाउन. ये जो बीच वाला पार्ट है वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियस, और जो बाहर का ये पूरा रीजन है इट इज़ नोन एज अ साइटोप्लाज्म. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है? अमीबा जब रिप्रोडक्टिव फेज पे पहुंचते हैं, मतलब वी ऑल नो हर ऑर्गेनिज्म 3 फेजेस में होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन. तो जब अमीबा एक साइज तक ग्रो हो जाता है तो वो रिप्रोडक्शन करने के स्टेज में आ जाता है. तो जब ये रिप्रोडक्शन के स्टेज में पहुंचता है वी कॉल इट एज अ पेरेंट अमीबा. Then we call it as a student as a parent amoeba. Okay student, अब जब
पेरेंट अमीबा को रिप्रोडक्शन करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो अपने न्यूक्लियस को एनलार्ज करने लगता है। मतलब वो अपने न्यूक्लियस को बड़ा करता है ताकि आगे जाके वो उसी बड़े न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर सके। अब ये पेरेंट अमीबा है और पेरेंट अमीबा को बाइनरी फिजन करना है, तो बाइनरी फिजन करने के लिए पेरेंट अमीबा सबसे पहले करेगा एनलार्जमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस। अब ये पेरेंट अमीबा और पेरेंट अमीबा ने अब अपने न्यूक्लियस को क्या करना है स्टूडेंट, एनलार्ज करना शुरू कर दिया है, मतलब वो अपने न्यूक्लियस को बड़ा करने लगा। तो पेरेंट अमीबा को जैसे ही रियलाइज़ हो रहा है कि उसे रिप्रोडक्शन करना है, जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ यहाँ पे जो हो रहा है इट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट हो रहा है। किसके न्यूक्लियस का, अमीबा का। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट हो जाएगा, आगे वाले स्टेप में जो तुम्हारा न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, वो जाके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस। यहाँ पे हो रहा है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दैट मीन्स हमारा जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड दिस स्टेप इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। दिस स्टेप इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। कार्यो इज अ वर्ड विच इज स्टैंडिंग फॉर न्यूक्लियस और काइनेसिस इज अ डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। कार्योकाइनेसिस हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे अमीबा के अंदर स्मॉल सा नॉच बनने लगता है। मतलब अब साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने की बारी आ गई, तो अब वो क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, एनलार्ज करेगा। यहाँ पे हो रहा है एनलार्जमेंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स अभी ये करने वाला है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। धीरे धीरे एक पॉइंट से ये नॉच डीप होते चला जाता है और एक ऐसा स्टेज आता है जब यहाँ पे हमारे पास 2 अमीबा रेडी हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कार्योकाइनेसिस एक बार हो गया स्टूडेंट्स, तो अब अमीबा क्या करता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे 2 नए अमीबा मिल रहे हैं एंड नाउ दे आर नोन एज अ स्टूडेंट एज डॉटर अमीबा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डॉटर अमीबा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है एक सिंगल अमीबा से, आई विल राइट डाउन हियर एज वेल स्टूडेंट, यहाँ पे एक सिंगल अमीबा से हमें 2 छोटे छोटे अमीबा मिल गए और इस अमीबा को हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर अमीबा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना 2 चीज़ों का। जब पेरेंट था वो क्या हो गया है, उसने खुद को डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट में। मतलब जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, तो नेचुरली डेथ ही नहीं हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि एक पेरेंट है, उसने खुद को फिर से डिवाइड कर लिया 2 में, फिर ये बड़े होंगे खुद से डिवाइड कर लेंगे और इसी तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा है डॉटर अमीबा ही क्यों बोल रहा है, सन अमीबा क्यों नहीं बोल रहा है, मतलब ह्यूमंस की तरह डॉटर एंड सन क्यों नहीं है। स्टूडेंट जितने भी असेक्सुअल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब खुद रिप्रोड्यूस करते हैं एंड वी ऑल नो रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय फीमेल्स एंड दैट्स वाई इसे क्या बोला गया है, डॉटर अमीबा बोला गया, क्योंकि आगे जाके ये फिर से बिल्कुल अपनी मदर की तरह यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने वाली है। स्टूडेंट ये जो रिप्रोडक्शन था हमारे पास, इट इज़ नोन एज अ सिंपल बाइनरी फिजन। इस रिप्रोडक्शन को हमने बोल दिया सिंपल बाइनरी फिजन, जो कि
फेवरेबल कंडीशंस में होता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तुम्हें ये समझना है व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट अपने आप को डिवाइड कर लेता है इनटू टू डॉटर सेल्स, ओके, एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज अ बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, इफ वी सी, बाइनरी फिजन जो होता है इट टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, इट टेक प्लेस in favorable conditions whenever there is sufficient amount of nutrients are present। उस टाइम पे जो बाइनरी फिजन है वो होता है। बाइनरी फिजन इज कैरिड आउट बाय अमीबा, बाइनरी फिजन इज कैरिड आउट बाय पैरामोशियम, बाइनरी फिजन इज कैरिड आउट बाय यूग्लिना। तो बाइनरी फिजन के भी ना बच्चा दो टाइप्स है जो हमें दिए हुए हैं। एक को बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, वन इज नोन एज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब जब हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बारे में बात करें, वी विल सिंपली टेक इट एज अ पैरामोशियम। हमने ये पैरामोशियम ले लिया और यहाँ पे पैरामोशियम आ गया। अब जब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है ना बच्चों, तो डिवीजन बीच में से कुछ इस तरह से होगा। If this type of division take place, then we call it as a transverse binary fission. Apart from that, हमारे पास जो दूसरा binary fission है, it is known as a longitudinal binary fission. Next one is known as a longitudinal binary fission। और longitudinal binary fission में if we take an example of a euglena, तो we will see यहाँ पे जो division होता है वो longitudinally होता है, बीच में से होता है, and that's why it is known as a longitudinal fusion। तो when we are talking about longitudinal binary fission, इसका example हो जाएगा यूग्लिना और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामोशियम, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामोशियम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बाइनरी फिजन। एक सिंगल पेरेंट सेल ने खुद को डिवाइड कर लिया है इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज नोन एज अ बाइनरी फिजन। अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स, ये अंडर फेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिजन करता है, मतलब वेन एवर देर इज अ इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट। बट अगर कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो अमीबा जो है वो मल्टीपल फिजन करेगा, एंड लेट अस सी हाउ मल्टीपल फिजन विल बी परफॉर्म्ड बाय अमीबा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी मल्टीपल फिजन। अब जब तुम यहाँ पे ये वर्ड सुनोगे मल्टीपल फिजन, तो व्हाट डज कम्स इन योर माइंड, क्या समझ में आता है आपको मल्टीपल फ्यूजन से? तो जब हम मल्टीपल फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स फ्यूजन का मतलब है टू ब्रेक डाउन, वी ऑल नो, एंड मल्टीपल का मतलब है मोर देन वन और लाइक मोर देन टू, दिस दैट इज नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन। When a single organism break down into multiple organism, that is known as a multiple fission. When a single species, when a single organism divide itself into many organism, it is known as a multiple fission। जब एक से ज़्यादा डिविजन्स होते हैं, काइंड ऑफ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था और ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अब क्या कर रहा है,
बहुत सारे छोटे छोटे न्यू स्पीशीज़ को बर्थ दे रहा है या बहुत सारे न्यू स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस इज़ नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन, इसे हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। और बाइनरी में क्या हो रहा था बच्चों, बाइनरी में डायरेक्टली हमें एक से सिर्फ कितने मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे। तो यहाँ पे तुम्हें नाम के साथ ही पता चल जाना चाहिए बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मल्टीपल फ्यूजन में भी हम देखने वाले हैं कि अमीबा मल्टीपल फ्यूजन कब करता है या मल्टीपल फ्यूजन क्यों होता है। तो सपोज कर लो स्टूडेंट, ये हमारे पास अमीबा है, बिल्कुल उसी तरह से जो इसका सेंटर का पार्ट है वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियस। ये हमारे अमीबा का क्या रहा बच्चों, न्यूक्लियस, और बाहर हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज कर लो कंडीशन फेवरेबल नहीं है। नाउ कंडीशन इज़ नॉट फेवरेबल, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में फूड न्यूट्रिएंट जो है अमीबा को नहीं मिल रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस, ये जो अमीबा है इसने अपने बाहर, अमीबा ने अपने बाहर की जो वॉल है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया है। अमीबा ने अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया है और इस कवरिंग को हम सिस्ट बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सिस्ट। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करता है, अमीबा को प्रोटेक्ट करता है इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड वी कॉल इट एज अ सिस्ट। अब इस सिस्ट के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब ये पूरा का पूरा सिस्ट है, अमीबा ने सिस्ट बना लिया है, मतलब ये हमारे पास अमीबा था और इस अमीबा के बाहर पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज अ cyst. Cyst is always developed by amoeba under unfavorable condition. It is developed in unfavorable condition. Unfavorable condition में जो अमीबा है वो अपने बाहर cyst प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसको डेवलप कर लेता है। अब अमीबा के अंदर क्या होगा, अभी भी द होल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। एक न्यूक्लियस को डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियस में 2 से 4 हो रहा है और धीरे धीरे इनका जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस मतलब कार्योकाइनेसिस के बाद अंदर ही ये लोगों ने क्या किया है, साइटोकाइनेसिस भी कर लिया है, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कर लिया है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो अमीबा है इसका आउटब्रस्ट होगा, मतलब ये अमीबा फूट जाएगा और जैसे ही अमीबा का आउटब्रस्ट होगा बहुत सारे छोटे छोटे बेबी अमीबा जो है वो रिलीज होंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। ये पूरा का कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे जो है एक से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ दी जा रही है, दूसरा अमीबा अपने सराउंडिंग में सिस्ट बना लेता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो सवाल होता है ये सिस्ट क्या होता है, व्हाट इज अ सिस्ट? सिस्ट इज अ स्मॉल wall-like layer which is developed around the body of amoeba. अमीबा के बॉडी के बाहर ये जो सिस्ट है वो रहता है। तो ये सिस्ट करता क्या है बच्चों? सिस्ट जो है इसका काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अमीबा को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्ट बन जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे अमीबा दोबारा से क्या हो ये सिस्ट में से सारे के सारे बेबी एम्यूबिलाई जो है वो रिलीज हो जाएंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे हमें क्या मिल रहे हैं, देयर आर वेरियस मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन में जो ये सिस्ट बनने का प्रोसेस होता है
This process is known as a, they can ask you what does a process of cyst formation is known as. Encystation. Encystation, it is a process in which the amoeba is covered by a protective covering which is known as a cyst. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सेकेंड टाइप देख लिया है, व्हाट इज मल्टीपल फिजन. अब मल्टीपल फिजन के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज नोन एज अ बडिंग. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन बडिंग. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट. हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, दैट इज़ नोन एज अ बडिंग. हम लोग बात करने वाले हैं बडिंग के बारे में. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और बडिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है. अभी जो हम लोग बडिंग की बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये होता है ईस्ट के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, तो बडिंग क्या होता है उससे पहले हम लोग ले लेते हैं एन एग्जाम्पल. ये मेरे पास एक पैरेंट ईस्ट है. दिस इज अ बॉडी ऑफ अ पैरेंट ईस्ट. अब पैरेंट ईस्ट जो है स्टूडेंट्स, इन अ फेवरेबल, इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर के सप्लाई में जो ये ईस्ट होता है, इसके बॉडी पे एक छोटा सा आउटग्रोथ होने लगता है. मतलब ये इसकी बॉडी थी और इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ होने लगा. इस आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस भी है. धीरे धीरे जो ये आउटग्रोथ है वो बड़ा होने लगेगा. जो साइज ऑफ अ आउटग्रोथ होगी वो बड़ी होगी, इट विल इंक्रीज इन साइज. और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपने आप को डिटैच कर लेगा अपने पेरेंट सेल से, और यहाँ पे तुमको मिल गया एक पेरेंट अमीब ईस्ट और ये डॉटर ईस्ट. एक तो ये प्रोसेस होता है. दूसरा प्रोसेस ऐसा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम एक तुम ऐसे कर सकते हो, और दूसरा प्रोसेस ये हो गया हमारा पेरेंट ईस्ट जिसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ था. अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा और इसके ऊपर भी छोटा सा आउटग्रोथ होगा, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ईस्ट एक के ऊपर एक डेवलप होने लगते हैं. एंड नाउ दिस ऑल ईस्ट आर नोन एज डॉटर ईस्ट. और इनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इनको हम डॉटर ईस्ट बोलेंगे. तो बडिंग क्या है? बडिंग इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज एन आउटग्रोथ ऑन अ पेरेंट सेल विच इनलार्ज, एंड आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा. तो बडिंग के बारे में बात करें तो इट इज अ आउटग्रोथ विच इज डेवलप्ड on parent body. It obtains all the nutrient from parent cell and grow themselves. अब जब ये ग्रो हो जाएंगे तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक के ऊपर एक जो है वो ग्रो करने लगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंटेंट क्या होगा, व्हाट आर दी थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सी. उसमें हमने देखा है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश देखा है, और इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्पेसिफिकली बात करी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कितने टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. लाइक बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट जो है वो खुद को डिवाइड कर रहा है कितने, 2 इक्वल पार्ट्स में. फिर मल्टीपल फिजन में बहुत सारे हमें डॉटर अमीबा या बहुत सारे डॉटर
न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। और लास्ट में हमने बडिंग देखा है, और बडिंग में किस तरह से आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़े से बॉडी में डेवलप हो जाता है और बाद में जाके वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने लगता है। नाउ स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं हाउ डज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स।